Good evening to all my dear student. Dear student, yesterday we have to completed the chapter last, that is in metals and non-metals and metalloids. Today we have to start the new chapter, that is in coal and petroleum, which is resembled to class 8th and which is in briefly explained in a class 10th. But basically we have to complete knowledge of the coal and petroleum from the bottom of the knowledge. So we will get the each one of the topic one by one, and then we will to describe the each of the topic and their concepts. Firstly, fossil fuel. कोल के अंदर बेटा कोल एक तरह का क्या है बेटा अपने पास में फॉसिल फ्यूल है, एंड कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर द कोल इज इन लिक्विड फॉर्म एंड पेट्रोलियम इज इन coal is in solid form and petroleum is in liquid form. Dear student, firstly we will discuss about both are consist together and known as an fossil fuel. इन दोनों को बेटा अपन मिला के क्या बोलते हैं fossil fuel. Why the fossil fuel is called coal and petroleum? Because the fossil fuels are formation of the millions of years ago and their natural process. Through they are very useful to us in daily life. We are talking about the coals. Coal is in form of carbon. Coal क्या बेटा एक तरह का form of carbon है. Coal is form of carbon through which get energy. अपने को क्या मिलती बेटा एनर्जी मिल जाती है इससे. ओके, सो कोल इज इन बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कोल्स आर देयर अकॉर्डिंग टू दैट द डेप्थ ऑफ द अर्थ. अर्थ की डेप्थ में जैसे बेटा अपन डेप्थ में ज्यादा जाएंगे तो कोल की क्वालिटी क्या हो जाती है? इंप्रूव होती जाती है. इट मींस द गुड क्वालिटी ऑफ द कोल इज फाउंड इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ. फर्स्टली सरफेस कोल बेटा जो होता है वो अपने पास पीट. सर व्हाई द पीट इज इन सरफेस? बिकॉज peat is not a good quality of the coal, but peat consists only 60% carbon in it. How much? Only 60%. Now we go into deep of the earth. Then the next is in lignite coal. Lignite coal is a consists of 65% to 75% coal in it. Bituminous consists 70 to 80% coal carbon in it, but the anthracite consists to 80% to 90 or 95% something. Okay, so this is the anthracite is in best quality of the coal, and after that is bituminous. So this is in best quality and this is in moderate, and both are the least quality coal are present in the earth. So this is the reason, because anthracite is found in the depth of the earth. This is on the 4 type of the coal which are studied in the higher classes like a 10th class or 12th classes. Okay, now we will discuss, and these are consist coal is in part of the organic chemistry. ये किस में आएगा बेटा? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा बेटा, जिसमें बेटा अगर हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन में एक तो ग्रेफाइट पढ़ोगे आप, और दूसरा पढ़ोगे डायमंड, और तीसरा बेटा जो अभी जो चल रहा है वो बकमिस्टर फुल रेंज चल रहा है जिसको अपन बोलते हैं कार्बन 60 C60. तो कोल के ही बेटा टाइप से कार्बन के ही टाइप अपने पास कितने? देयर आर द 3 टाइप्स. नंबर 1 बेटा अपने पास आएगा ग्रेफाइट. ग्रेफाइट भी एक तरह का कार्बन है. दूसरा बेटा अपने पास आएगा डायमंड. ओके, और तीसरा बेटा अपने पास है C60 कार्बन 60, और बहुत सारे फ्यूल्स अवेलेबल है. सो दिस इज द रीजन द कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट in our organic chemistry. Now this is also petroleum is also considered under the organic chemistry because these are formed by the natural process. So we will discuss about the petroleum. Petroleum is in liquid fuel. Petroleum एक तरह का बेटा liquid fuel है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं petroleum is in liquid fuel through which एनर्जी विल गेट. क्या मिलती है बेटा अपने को? एनर्जी से मिलती है. नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम में, बेटा अपने को कौन कौन से फ्यूल्स है पेट्रोलियम के अंदर में? तो पेट्रोलियम से सबसे पहले बेटा अपने को फ्यूल मिलेगा पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम तो क्या लिक्विड, बट पेट्रोलियम के ऊपर बेटा क्या होती है? जो स्टीम की फॉर्म में गैस होती है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस. सर कौन सी होती है बेटा? जिसमें आपकी एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. उसके बाद बेटा अपने पास में क्या? गैसोलाइन एंड नेफ्था. पेट्रोलियम के ऊपर बेटा क्या होती है?
गैस होती है जिसको अपन क्या करते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, बेटा अगला अपने पास क्या रखा है, केरोसिन। तो ये केरोसिन क्या बेटा, लिक्विड है जो पेट्रोल के जस्ट नीचे होगा। पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है, टॉप पे होगा, और केरोसिन थोड़ा नीचे होगा। उसके बाद बेटा केरोसिन के नीचे क्या होगा अपने पास में, दैट इज लाइट ऑयल, हल्का ऑयल होगा जिसकी डेंसिटी केरोसिन से थोड़ी ज्यादा होगी बेटा। ओके, फिर अपने पास हैवी ऑयल आ जाएगा बेटा, जिसकी डेंसिटी और ज्यादा होगी। जो अगर हम बात करते हैं तो बेटा अपने पास जो फ्रैक्शनल कंटेनर है उसमें नीचे होगा ये, और सबसे बॉटम पे क्या होगा बेटा, जिसको अपन बोलते हैं बेटा रेसिड्यू। रेसिड्यू इज लास्ट, दैट इज कंप्लीट टार, जिसको अपन बेटा डामर के नाम से जानते हैं। तो सबसे बेटा जो अपने पास है, सबसे टॉप पे नंबर 1 पेट्रोलियम गैस, नंबर 2 गैसोलाइन, नंबर 3 केरोसिन, नंबर 4 लाइट ऑयल, number 5 is in heavy oil, and number 6 is in residue. This is a complete fossil fuels knowledge, and there are the basically main content of the topic about the coal and petroleum. We will discuss each one of them in this chapter, and some of the fuel are also are there. Hydrogen is also kind of fuel that is known as a green fuel. Next, that is nitrogen. Nitrogen is also kind of fuel because this is used in agriculture fertilizer, so there is a fuel, nitrogen also doing their work as a fuel. So dear student, in this chapter we will discuss, there are some of the most important topics, natural resources. Natural resources बेटा अपने पास क्या है, जो नेचर ने अपने को प्रोवाइड करवाए। फॉर एग्जांपल नेचर अपने को क्या सर, इसकी डेफिनेशन अपन ऑन सेल्फ कैसे क्रिएट करेंगे, दोस थिंग्स आर फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स which is are created by the nature, जो किसने बेटा अपने को दी है, नेचर ने क्रिएट करके अपने को दी है। सर फॉर एग्जांपल अपने पास क्या नेचर का दिया हुआ बेटा, प्लांट है, किसने क्रिएट किया है, नेचर ने। ओके, नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या है, प्लांट है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये नेचर ने दिया है। तो नेचुरल रिसोर्स अपने पास दो तरह के हैं सर, कौन कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि वाटर है वो रिन्यू हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या बेटा, कोल हो गया, उसको अपन एक बार जलाने के बाद में रिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज देयर फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेचर different, but the water complete their refill process within the fixed time period intervals, but the carbon does not have a faster process because then carbon has takes to millions of years to formation, या 100 of years भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट बेटा फॉर्मेशन ऑफ द सोइल भी क्या अपने पास में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो रिन्यूएबल, बट इज नॉट इन सडनली formation by the nature, because when 1 centimeter of the soil is formed on the earth takes to 100 of years, so this is a complete slow process. So when the soil becomes erode by the help by the some of the agents like a wind, water, heavy rains, and some of the human activities, industrialization and deforestation, these are the reason to erosion of the soil. So and heavy rain, cyclones, winds, these are the main reason to deplete of the our fertilizer from the our fields or farms. So this is a disadvantage for us. Now we will discuss there is fossil fuel. Fossil fuel बेटा आपके पास कंप्लीट चार्ट रखा हुआ है, जिसमें अपने को कोल पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना और बेटा नेचुरल गैसेस पढ़नी है। लास्ट में बेटा अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो है प्रिवेंशन। अगर इन सब का बेटा क्या हो जाएगा कंप्लीट, अगर अपन को जैसे कंप्लीटली इनको यूज करते जाएंगे तो देयर इज एन एंड, वन डे देयर इज ऑल द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकम्स एन एंड। सो वी विल टेक द प्रिवेंशंस, इट मींस वी कैन यूज द नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आवर नीड, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको अपन कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ प्रोसेस या अ मेथड इन विच द पीपल यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, कीप इन माइंड द अपकमिंग जनरेशन, but the main objective to does not harm the our environment। ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर बेटा अपन जो है अपने रिसोर्सेस को तो अपनी जरूरतों को कंप्लीट कर लें, और आने वाली जो जनरेशन उसके लिए क्या कर सके बेटा, नेचुरल रिसोर्स को रिजर्व कर सकें, और बेटा ऐसे इस तरह से यूज करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। दैट इज द रीजन। सो दिस इज एन प्रिवेंशन इज नेसेसरी। अगर अपन ने आज प्रिवेंशन नहीं किया बेटा, इसका अगर अपन ने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो वन डे विल डज नॉट गेट द पेट्रोल और कोल। आवर अपकमिंग जनरेशन जस्ट इमेजिन इट ओनली अबाउट द कोल, वो इमेजिनेशन कर सकती है, लेकिन उसको अगर अपन कोल का एग्जांपल देंगे बेटा उनको कोल क्या होगा, जैसे कि आज अपने को क्या लगता है डायनासोर्स हैं, अपने को डायनासोर दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं,
बट द डायनासोर इज एन हेवन ऑन दिस प्लेस, वो इस प्लेस पे थे, बट अभी क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट हो चुके हैं। सेम दिस इज, तो सो प्रिवेंशन इज एन वेरी मस्ट टू अस। तो बेटा ये प्रिवेंशन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रिवेंशन मेथड्स यू विल टेक टू प्रोटेक्ट द या प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। देयर इज सम ऑफ द मेथड्स वी अप्लाई इन डेली लाइफ। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या होगा, अगर प्रिवेंशन नहीं किया आपने तो क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। एनर्जी के रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे बेटा, लिमिटेड है हमारे पास, वन डे देयर विल बी बिकम्स exist from the earth, so we will be suffering from the energy crisis. Nowadays every developing country is suffering from the energy crisis. हर डेवलपिंग कंट्री को बेटा क्या चाहिए आज के डेट में, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगी उनको बेटा, जब हम उनको प्रिवेंशन करेंगे एंड बेटर यूज ऑफ द आवर रिसोर्सेज, देन वी विल गेट द अप्रोप्रिएट एनर्जी। सो वी विल डिस्कस द ईच वन ऑफ देम इन दिस क्लास। डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द नेचुरल, अब अपने पास जो सबसे मेन टॉपिक है वो क्या बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। और नेचुरल रिसोर्स में कितने टाइप है, में दो टाइप है। एक तो नेचुरल रिसोर्स के अपने पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, रिन्यू हो जाता है वापस एक सर्टेन टाइम पीरियड में, बट नॉन रिन्यूएबल सर्टेन टाइम पीरियड में बेटा कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज इट हैज द लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर बिकम्स फॉर्मेशन। उसकी फॉर्मेशन होने में बेटा एक लंबा टाइम लगता है, दैट इज द रीजन। Okay, we will discuss each one of them one by one. This is the complete mind map of this chapter. Dear student, we will discuss each one of the topic one by one. Okay, dear student, we will discuss about the natural resources. Natural resources क्या है बेटा, जो नेचर से जो अपने को दिए गए हैं या नेचर से अपने को एज एन गिफ्ट दिए गए हैं। सो नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, सिंपल, अगर सबसे सिंपल अगर आप लर्न करना चाहो तो बेटा सिंपल हो सकता है, those things which are provided by the nature to fulfill the needs of the living organism is known as natural resources. But as a unique definition is there, natural materials found on the earth, मतलब जो अर्थ के ऊपर बेटा नेचर के दिए हुए मटेरियल अपने पास अवेलेबल है, that allow the existence of life, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, and satisfy the needs, जो अपनी जरूरतों को कंप्लीट करते हैं, of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अपने ह्यूमन बीइंग सब कुछ आ जाएगा, माइक्रोब से बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब कुछ आ जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको सबको अपन नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि अपने पास में सर क्या हो गया, अपने पास बेटा नेचुरल रिसोर्स वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, मिनरल्स हो गए, दीज आर द कंप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज। बट द नेचुरल रिसोर्सेज इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन बेटा अपने पास क्या है, रिन्यूएबल, और दूसरा बेटा अपने पास है नॉन रिन्यूएबल। तो नाम से पता चल रहा है, एज ए नेम सजेस्ट, रिन्यू का मतलब क्या होता है बेटा, वापस जो रिन्यू हो जाता है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको वापस कंप्लीट होने में एज एन सर्टेन टाइम पीरियड लगता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में। तो सिंपल बेटा रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट विल आइदर नेवर रन आउट, मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सन कभी खत्म नहीं होगा, तो 5 मिलियन ईयर से बेटा क्या हो रहा है, कंप्लीटली अपने यहाँ पर लाइट दे रहा है, तो आने वाले 5 मिलियन ईयर भी अपन क्या सोच सकते हैं, सन इज कंटिन्यूस गिविंग द एनर्जी टू अस। और those that are replaced within a reasonable time period। तो बेटा क्या होता है, ये एक रीजनेबल टाइम पीरियड में अपने पास वापस क्या हो जाएगा, रिफिल हो जाएगा। जैसे कि वाटर है, वाटर साइकिल, पॉन्ड के अंदर वाटर भरा हुआ है या रिवर के अंदर वाटर है, तो रिवर से कहां जाएगा, ओशन में, ओशन से वेपर में कन्वर्ट होगा, वापस क्लाउड बनेगा, क्लाउड से बेटा क्या होगा, वापस रेन होगी, और रेन से वापस क्या होगा, रिवर की फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो दिस इज रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट ये वापस रिसाइकल हो जाएगा, एंड दिस इज नेचुरल प्रोसेस। तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है वापस रिफिल होने की, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि अपने एग्जांपल लिया कि बेटा वाटर, तो दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट बेटा अपने पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटा सिंपल दे रखा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वंस, अगर एक बार अपन ने यूज कर लिया उसको, वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस, जिसको अपन वापस रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। सर फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने फ्यूल को जला दिया, कोल को जला दो आप, कोल से क्या बच जाएगी अपने पास, एस बच जाएगी, तो एस से अपन वापस क्या नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते उसको। ओके, या फिर मान लीजिए विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप एक उसका जो टाइम पीरियड उसको फॉर्मेशन, अपने को कोल वापस चाहिए, तो कोल को बेटा क्या होगा, कोल से वापस जो प्लांट है वो प्लांट डेड होगा, डेड होकर बेटा वो अंडर द अर्थ जाएगा और उसके ऊपर हाई प्रेशर लगेगा, फिर लॉन्ग टाइम के बाद बेटा कोल बनेगा, तब जाकर फिर उस कोल डिकम्पोज होगा, फिर धीरे धीरे बेटा प्लांट की जो लीव्स है वो डिके होगी, फिर सॉइल बनेगी। तो ऐसा कहते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में कितना टाइम लग जाता है बेटा,
almost 100 of years. So this is not a renewable resources. That means that takes the large number of time. So this is non renewable resources. बेटा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो बेटा जो प्लांट होता है, हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीटली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज द नेचर वांट टू बी द complete balance. When the animal release the CO2, okay, and the CO2 is controlled by the plant, because plant doing the photosynthesis process, they use the CO2 and as in form of the glucose, और बेटा वो वापस क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, and that support the life of the animals as well as a human being. So plant is a necessary natural resources for our life and exist on this planet. So dear student, next topic we will discuss in the next class. I think there is a complete solution and complete concept is clear to each one of them. Then after this class, any one student have any doubt or any queries, just write their queries in a comment box. Dear student, please subscribe the channel and give the feedback of this channel so we can provide the better videos for you and better lecture for you. Thank you, better watching for this channel.